So, good evening, YouTube. I'm here after I think 3 days. So, I got stuck with some work because now I'm in Bhopal. So, had some meetings with my clients. So, was not able to take sessions. But now I'm live. So, let's wait and let's see who's joined. I think two people are there. Good evening, Mohit sir. How are you? It's good to see you soon. Good evening, Pooja ma'am. How are you? And good evening, Simi ma'am. I'm good. Thank you. And how are you? Good evening, Divyanshi ma'am, Pooja ma'am. I'm good. Thank you. And how are you? How are you, Divyanshi ma'am? Priya ma'am. Good evening. I'm good. Thank you. And how are you? I'm good, Divyanshi ma'am. Thank you. Am I audible? Can you hear me properly? Please, if you can hear me properly, so show me the thumb. Uh, I'm good too, sir. Thank you. Sounds good. You're also good, Mohit, sir. Sounds good. Good to see you. Thank you so much, ma'am. Same here. I was badly missing my live sessions because now I'm in the habit of taking daily sessions, and last 3 days I was not able because one day I traveled a lot, so I was traveling and I was very tired. Yeah, I would say that I was exhausted. And last 2 days I was with my clients, so I was discussing with them about tattoo. Like last night, I had an appointment with my clients. So good. Good evening, Rohan sir. It's good to see. Okay, everyone is showing me the thumb. So it's good to see you, Radhika ma'am. So you guys tell me how was your day? My day was very hectic. Means for last, if you ask me, my every day, like my last 3 days have been very, hectic. Was not able to, find out time. Even I was not able to make short videos. So isn't, but I'll do it soon. If you hear something in the background, I am sorry for that because here, many people live because it's a flat. So yeah, sounds good. Sounds good. Day was productive. Why don't you explain your day like I do? Good evening, Kabira, ma'am. I'm good. Thank you. And how are you? My oral exams are going on. Okay, my day was productive. I studied a lot. Tomorrow is my exam. All the very best to Divyanshi, ma'am. May you fare well. Uh, so good evening, Sanidhya, sir. I'm good. Thank you. And how are you? Never mind, Divyanshi, ma'am. Just I hope you are well prepared for your exams. And same here, Sanidhya, sir. Good to see you also. Good to see even everyone, actually. I'd missed all of you. So, if you ask me today's topic, it's going to be a wonderful word. I'm going to talk about a word, but many people
do not know the proper use of this a simple word. सो आई होप आज का जो सेशन रहने वाला है वो बहुत प्रोडक्टिव होगा आप लोगों के लिए, एंड उस वर्ड को आप और क्लोजली फील कर पाओगे दैट ओके, मतलब सिंपल वर्ड कैन ब्रिंग लॉट ऑफ, एक कॉमन वर्ड की बात कर रहा हूँ, एंड after some time, once it is 10 o'clock, I will start talking. Same here, Radhika, man. Thank you. Today I went to school for admission. You went for your admission? Puja ma'am, so you have to explain it. Today you had Malpua. That's not really good of you, Divanshi ma'am. Now I'm in Bhopal. So if, because here my schedule is very hectic, so I'm not able to cook. So I think when you have good food, so you can, you know, give me a call, sir, please. I will collect. So today I went to school for admission. No, sir. Okay. You went for your son's admission? Am I right, Pooja ma'am? Yes, I'm prepared for tomorrow exam, but I'm little bit nervous for my naughty son. Okay, for your naughty son. Yeah, sharing is caring. So you must, share. Uh, so, Mohit sir, what about your exams? Because as you said, your oral exams are going on. How are you performing in your exams? Are your exams going good? And what about last 3 days? Did you practice? I think Divyanshi ma'am, I clear. I've told everything. How was my day? Was very hectic. Since I woke up after, I had many work to do. So I just completed my work, and I'm quite happy because I was able to complete my work. There were not pending actually. So I'm very happy. Today I have woken up at 6:30 a.m. Uh, have नहीं लगेगा मोहित sir. I woke up होगा, ठीक है. You start with second forms, So I woke up at 6:30 a.m. because अगर have लगा रहे हो उसके हाथ में आप टाइम भी बता रहे हो और वो टाइम खत्म हो चुका है, तो नो टाइम लेफ्ट की ग्रामर में आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हो. एंड देन आई ब्रश्ड माय टीथ, then I go for running, then I went for running, second form because you're talking about today, uh, and exercising for 1 hour. Then I took a bath and then I prepared myself for my online classes. That's good. That's really good. So दो जो mistakes हैं उनको आप ज़रूर check कर लीजिए because important. Your background wallpaper is looking amazing. I think you must be knowing it was when I had my tattoo studio in Bhopal. I had the same background in my studio, and I just took it off from there and I've pasted it here in my flat here in Bhopal. So I think it's not new. I guess it should not be new to you. At least I'm sure that you must have seen. So yeah. So what about other guys where you are being silent? Means you're busy with something. Are you doing something, Rohan sir? Where are you? Are you there, or are you doing something else?
So there are only we have 1 minute more left. After that, we'll start our today's session. So Kabir, when will you plan for meeting us? होगा ना? For लगा है कबीरा में. सो फॉर के बाद आपको एक्शन में आईएनजी लगाना होगा फॉर मीटिंग अस. लेट्स सी. आई हैव टू सी माय schedule, and after that just see very soon, because maybe I think after the Sunday, because nowadays very busy with my appointments. This background is also in your day 15 video that you made in August. Yeah, you must have seen, because that time in August and September, even in October, I was in Bhopal. So, of course, that's very, got a very good memory, Mohit sir. Good. Good evening, Sudhir sir. I'm good. Thank you. And how are you? Okay. So, I'm going to start, because this is 10 o'clock, and this is time to start the session. And here we go. And if I talk about today's word, this is a very simple word. Just a second. The cursor is not here. Belong. The word is very simple. As I said in the beginning of the class, that आज का जो वर्ड है, सुनने में आपको, गुड इवनिंग प्रदीप सर, सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस वर्ड. क्लियर. चलिए मैं उसी वर्ड से शुरुआत करता हूं, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा एक्चुअली बिलोंग को जानते हैं. नॉर्मली जब हम कहीं के रहने वाले होते हैं, तो बिलोंग वर्ड को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं का रहने वाला हूँ, रहना एक अलग चीज है और कहीं के रहने वाले अलग होते हैं. कहीं के जब हम लोग होते हैं, सो वी यूज दिस वर्ड, जैसे कि आई कैन यूज आई बिलोंग टू, एंड प्लीज मेक इट अ पॉइंट. अब सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे इस बात की जरूर गांठ बांध लीजिए कि जब आप कहीं के रहने वाले हो, तो बिलोंग के बाद आप फ्रॉम मत लगाइएगा. बिलोंग के बाद टू प्रपोजिशन यूज करने का रूल है कि जब आप किसी प्लेस से बिलोंग करते हैं तो टू जरूर लगाओ. ठीक है. आई बिलोंग टू. और अगर मैं बताऊं कि आई बिलोंग टू जयपुर, ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, है ना. सुनने में बिल्कुल है, जैसे मोहित सर का इतनी देर में आ गया रिप्लाई दैट आई बिलोंग टू जयपुर. इट्स वेरी गुड. मैं अब यहाँ पे ये बता देता हूँ कि आप जब किसी जगह के रहने वाले होते हैं, वी हैव एक्चुअली, आप चार तरीके से यूज कर सकते हो. वैसे तो बहुत सारे हैं बोलने के सारे तरीके. दिस पेन बिलोंग्स टू मी. गुड. अभी दिव्यांशी मैम, पहले प्लेसेस के बारे में बात करते हैं. मैं एक स्टेज से लेके चलूंगा, अदरवाइज कंफ्यूजन्स आगे बढ़ सकते हैं. मैंने कहा ना, आज बिलोंग के मल्टीपल मीनिंग्स आने वाले. सो द फर्स्ट वन इज कि आई बिलोंग टू भोपाल या आई बिलोंग टू जयपुर आपने यूज किया. ओके फाइन. आई बिलोंग टू एमपी रीवा. आपको पहले रीवा लिखना चाहिए प्रिया मैम. रीवा कम्स फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट आपको लगाना पड़ेगा. तो आई बिलोंग टू रीवा इन मध्य प्रदेश. सो ऐसे करना पड़ेगा, है ना. क्योंकि आप रीवा से बिलोंग करते हैं, और वो रीवा किस जगह पे एरिया में है, फिर इन लगा के आप उस बड़ी प्लेस का नाम बताओगे. जैसे अगर मान लेते हैं भी हम लोग अब्रॉड में हैं और मैं बताऊंगी, तो वहां पे हम लोग रीवा नहीं बोलेंगे. मतलब मैं जयपुर नहीं बोलने वाला, मैं वहां पे बोलने वाला हूँ कि आई बिलोंग टू इंडिया. क्योंकि जैसे जैसे बढ़ जाएंगे हम लोग वहां पे, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग शायद उस पर्टिकुलर प्लेस को जानते ही नहीं हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे इंडिया के सारे स्टेट से लोग आए हैं, वो लोग फिर अपने प्लेस का नाम नहीं बताएंगे, फिर वो ये बताएंगे आई बिलोंग टू मध्य प्रदेश. ठीक है. तो ये आप मान के चलिएगा कि इसको समझिए कि पहला एक यूज हो गया जहाँ के हम रहने वाले होते हैं, फिर हम अपना एक एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि इस एक चीज का संबंध दूसरे से क्या रखता है. तो अगर मैं कह रहा हूं कि आई बिलोंग टू
राजस्थान, अगर हम सारे स्टेट के लोग बैठे हैं और वहाँ पे अगर ये बात चल रही हो कि यहाँ से, सो इट्स गुड. Sunil sir is saying, I belong to Jaipur, I belong to Bhopal, I belong to Kethil in Haryana. That's very nice. ठीक है. सो ये चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को कि जरूरी नहीं है कि आपको कहीं पर भी होकर आपको सिर्फ अपने प्लेस का नाम याद रखना है. तो अलग अलग सिचुएशन में आप लोग ये यूज करेंगे. द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज, एक मैंने कहा कि आपको बताने के एक और तरीका है, वो है आई हेल फ्रॉम. ठीक है. ये बिलोंग को आप रिप्लेस कर सकते हैं इस वर्ड से. एंड ये आपके पास एक तरीका है. तो आप कहीं के अगर रहने वाले हो तो आप हेल वर्ड यूज करिए प्लीज. इसका जब आप इसको प्रोनाउंस करें तो ध्यान रखिएगा कि आपके मुंह से हेल ना निकले. हेल. ठीक है. सो आई हेल फ्रॉम. बिलोंग के बाद टू लगाना मस्ट है, हेल के बाद फ्रॉम लगाना मस्ट है. तो आई हेल फ्रॉम जयपुर. क्लियर. तीसरा एक तरीका और बताऊं तो वो है आई कम फ्रॉम. और प्लीज इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो आई कम फ्रॉम है इसको हमेशा प्रेजेंट में ही यूज करिएगा. इसका मतलब है कि गलती से मत बोलना आई एम कमिंग फ्रॉम. ठीक है. सो इट इज यूज्ड ऑलवेज इन दिस सेंस कि आई कम फ्रॉम. सो यहाँ पे कम मतलब आना नहीं है. ठीक है. यहाँ पे कहीं के रहने वाले के बारे में बता रहे थे. आई कम फ्रॉम. फिर वही चीज़ है जैसे बिलोंग यूज़ किया था. अभी हम लोग अपने अपने स्टेट्स में बैठे हुए हैं और वहाँ अपने पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बताना. जैसे आई आई कम फ्रॉम, अगर मेरे को बोलना हो कि मैं एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ या रहने वाला हूँ, तो आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज. आई हेल फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज. आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल विलेज इन राजस्थान. ठीक है. मैं ये बता सकता हूँ. तो इसका ध्यान रखिएगा. आई हेल फ्रॉम भोपाल, आई फ्रॉम छत्तीसगढ़, आई हेल फ्रॉम केथल, आई कम फ्रॉम जयपुर. वेरी नाइस. सो आप कम फ्रॉम यूज कर सकते हो, हेल वर्ड यूज कर सकते हैं, आप बिलोंग वर्ड यूज कर सकते हैं. एक और तरीका है जिसमें एक्शन यूज नहीं करते. अगर आपको कहूँ वैसे तो एक्शन ही है, लेकिन बी को जब आप प्रेजेंट में यूज करते हो तो एम बन जाता है. सो आई एम फ्रॉम. ठीक है. एक तरीका ये भी है, इसमें आप कोई एक्शन यूज नहीं कर रहे, बस इतना ध्यान रखिएगा. आई एम फ्रॉम. सो आप इस तरीके से भी बता सकते हो. ये सबसे सिंपलेस्ट मानते हैं. ठीक है. सो आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम कोई भी प्लेस का नाम आप बता सकते हैं. सो देर आर 5-6 जो मैंने अभी आपको बताया. ठीक है. अब जो प्रैक्टिस करेंगे अभी हम लोग, आपके पास 4 तरीके हो गए हैं, आप चारों तरीके से बना सकते हैं. बट अभी आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अब आप अपने बारे में ना बता के आपको अपनी मॉम के बारे में बताना है. ठीक है. एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. वेयर डज योर मॉम बिलोंग, जो मैंने पहला वर्ड लिया था, और टू जरूर लगाइएगा. ठीक है. ये बड़ा ध्यान रखिएगा. सो वेयर डज योर, सो इट्स सिंपल. Where does your mom belong to? फाइन. सो बिकॉज हम जब बताते हैं कहीं के रहने वाले, सो हम उस प्लेस का नाम लेते हैं जहां से हमारे फादर के रूट्स जुड़े हुए हैं. ठीक है. और मॉम कभी कभी डिफरेंट प्लेस से होती हैं, डिफरेंट विलेज से होती हैं. हो सकता है डिस्ट्रिक्ट सेम हो, विलेज डिफरेंट हो. समटाइम ये भी होता है कि सेम ही प्लेस से लोग बिलोंग करते हैं. तो माई मॉम बिलोंग्स टू रीवा, माई मॉम बिलोंग्स टू जबलपुर. गुड. My mom belongs to Raisen. My mom is belong. पूजा मैम ये गलत हो गया. क्योंकि अब मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि आप थर्ड पर्सन की जरूर प्रैक्टिस करिए. थर्ड पर्सन की प्रैक्टिस करते वक्त आपको इज एंड एस लगाने का जो एक रूल होता है ना, उसमें जो हमारी कई बार मिस्टेक्स होती हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी. मतलब वो मिस्टेक्स जो रहेंगी, आई होप वी मे overcome that problem. So my mom is belong nahi hoke, my mom belongs to Panipat. So my mom belongs to Riva in MP. My mom belongs to Gorakhpur. Okay, ये उत्तर प्रदेश. My mom belong to Riva. प्रदीप सर, इसको सही करना है आपको कि my mom belongs, s लगेगा वहां पे कि my mom belongs to Riva. So my mom belongs to Shamshabad in Vidisha district. Okay, yeah. My mom belongs to Bhopal. Okay.
वेरी नाइस. सो जबकि मैं आपसे बिलोंग के बारे में बात कर चुका हूँ, और एक चीज़ और भी मैंने आपसे कही है कि माय मॉम बिलोंग्स टू जयपुर. गुड इवनिंग जतिन सर. आई एम गुड, थैंक यू. हाउ आर यू? यू आर क्वाइट लेट अ बिट. So please, I hope you will start participating in this. My mother belongs to Bina in MP. Okay, Bina is on the way to Jaipur, and on, like, if I travel by, train, it comes on the way. My mom belongs to Panipat. Yes, Pooja ma'am, now your sentence is right. Simi ma'am, I belongs to Narsinghad. Okay, that's very nice. And it's a beautiful place, and there is a very good, not very good, it's a ruined fort is also there. I visited it twice. It's a good place. Panipat. Yeah, it's a nice place, and I wish to visit Panipat because I want to see that ground where the Panipat war or battle was fought. याद है आपको? ये पैसिव वॉइस यूज कर रहा हूँ. The Panipat battle was fought. So got stuck in some problems. Otherwise, I would have joined on time. Good. ठीक है, no problems, no issues. Let bygones be bygones. I think not that big matter. So it's good to see. चलिए, द फर्स्ट वन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अभी, कि जब हम किसी प्लेस के रहने वाले होते हैं तो हम इस तरीके से यूज करते हैं. नाउ द सेकंड, इफ आई टॉक अबाउट, देन इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम बिलोंग यूज करते हैं, जब किसी चीज का संबंध किसी चीज के साथ दिखाते हैं. जैसे दिव्यांशी मैम ने सबसे स्टार्टिंग में एक सेंटेंस बनाया था, और वो ये था कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी. ठीक है. सो इसको आप यूज कर सकते हैं, है ना. सो आप किसी भी चीज के बारे में जो जिस जिस से संबंध रखती है, आप टू लगाकर उस ग्रामर को यूज कर सकते हैं. क्लियर. सो जैसे आपने अभी अपने बारे में बताया, अब हम किसी चीज के बारे में बता देते हैं. कोई चीज अगर किसी चीज से बिलोंग करती है तो वी कैन यूज दिस. जैसे आप पानीपत का युद्ध के बारे में बात कर सकते हैं कि अगर वो पानीपत का जो युद्ध है, अगर वो किसी चीज को बिलोंग करता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं. फाइन. सो किसी पार्किंग एरिया में कहीं पर भी अगर आपको ये बात करनी हो कि भैया ये कार मेरी है, सो देर आर मैनी वेज टू टेल. अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि दिस कार बिलोंग्स टू मी. ठीक है. वैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये कार किसको बिलोंग करती है, तो मैं ये चाहूंगा कि अब आप इसका क्वेश्चन बनाइएगा. आप क्वेश्चन बनाने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं. ठीक है. अगर कभी किसी चीज के बारे में ये पता करना हो कि ये चीज किसको बिलोंग करती है, सो नाउ दिस इज व्हाट आई वांट यू टू प्रैक्टिस. ये सेंटेंस मैं नहीं लिख रहा, एक सिंपल है. सो लेक व्यू बिलोंग्स टू भोपाल. फाइन. जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि जो होटल ताज है किसको बिलोंग करता है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, एंड आई वांट यू टू मेक these sentences in English. सागर गहरे belongs to भोपाल. सागर गहरे belongs to भोपाल आप बोल सकते हैं डेफिनेटली. और फिर सागर गहरे के मालिक के नाम बता सकते हैं कि it belongs to that person. और कोई चीज़ अगर आपकी नहीं हो तो आप बोल सकते हैं कि आपसे ले जाइए, it doesn't belong to me. ठीक है. होटल ताज belongs to मुंबई, भोपाल. No, 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 not a place name. I just want to know the person's name. Whom does this car belong to? चलो, एक एक आ गया मेरे पास, मोहित सर का. होटल ताज बिलोंग्स टू मुंबई. हेमंत सर, क्वेश्चन चाहिए मुझे, और मुझे पर्सन के बारे में पता करना है ना. मैं यहाँ पे प्लेस के बारे में नहीं बात कर रहा. जैसे जो भी ब्रांड है आप उससे बिल्कुल बात कर सकते हैं. To whom does it belong? Who does that belong to? Taj Hotel belongs to Ratan Tata. आपने इसका जवाब दे दिया रोहन सर. आई जस्ट वांट
कि इसका अगर आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना होता है या आप किसी और से पूछना चाहते हैं, whom does होटल ताज belong to? मोहित सर का भी आ गया रिप्लाई फिर से। सो हु इज मिसिंग आउट? हु डज फेसबुक बिलोंग्स टू? जतिन सर डज भी है और इसमें बिलोंग्स भी लगा हुआ है, ठीक है। हु बिलोंग्स हु बिलोंग्स टू होटल ताज? आह, आह, इसका सेंस कुछ और निकल के आ जाएगा। होटल ताज बिलोंग्स टू हुम? चलिए ना, मैं आपको इसका बता देता हूँ। इट्स वेरी साउंड सिंपल। मैंने जब एक सेशन है, शायद मेरे ख्याल से आप लोग देखिएगा, whom एंड who का एक सेशन मैंने लिया था कि जब आप किसी पर्सन के अगर आप बिलोंगिंग्स को जानना चाहते हो, ठीक है, कि चीज किसकी है, सो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हु, जो अब ज्यादा कॉमन है और बहुत लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, पहले आपको हु लगाना है, उसके बाद ऑफ कोर्स हम लाइफ की बात कर रहे हैं तो हु डज, ठीक है। तो हु डज होटल ताज बिलोंग, और जब हु से शुरुआत करते हैं तो जो अगर जो एक्शन हम यूज कर रहे हैं उसके बाद जो प्रपोजिशन है वो मस्ट है, अगर लगाना तो वो सबसे लास्ट में लगेगी। तो जब आप हु से बनाओगे तो आपका सेंटेंस बनेगा हु डज होटल ताज बिलोंग टू। लेकिन अगर आपने whom यूज किया, whose डज, ना ना सिमी मैम, इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे। वो एक अलग तरीका था, whose के साथ आप बात कर सकते हो, लेकिन वो उसमें बिलोंग वर्ड का वो नहीं आएगा प्रैक्टिस। हम पूछ सकते हैं होटल ताज किसका है, ठीक है। तो उसका रूल क्या था, अगर आपको याद हो तो हुज के बाद हम उस चीज का नाम लगाते हैं। तो पहला ये है। दूसरा ये है कि जब आप whom यूज करते हो तो आपको पहले प्रपोजिशन यूज करनी पड़ती है, यानी कि इसमें टू प्रपोजिशन है। सो टू से ये सेंटेंस शुरू होगा, टू whom, और बाकी जो सेंटेंस है वो सेम हो जाएगा। हु टू whom डस, यस मैम, टू whom। बिल्कुल, योर सेंटेंस में एक गलती है, वो ये है कि आपने टू को शुरू में भी लगाया और लास्ट में भी लगाया सिमी मैम। तो आपका सेंटेंस शुरुआत अच्छा है, आपका सेंटेंस बिल्कुल शुरू से सही है, बट लास्ट में जब दोबारा टू आ गया तो वो गलती हो गई, ठीक है। अदरवाइज द सेंटेंस इज राइट। सो टू whom डज होटल ताज बिलोंग? सो आप जब किसी चीज से ऐसे पता करते हो, स्पेशली बिलोंग वर्ड जब आप यूज करेंगे, और जब भी आपको पता करना हो कि किससे बिलोंग करता है, तो आपके पास ये दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हु जब आप यूज करेंगे तो बिलोंग के बाद टू सबसे लास्ट में यूज करना, और जब आप whom यूज करोगे तो टू जो प्रपोजिशन है वो आप पहले यूज करोगे। क्लियर, ये जरूर ध्यान रखना। सो टू whom डज होटल, यस मोहित सर, नाउ योर सेंटेंस इज राइट। आप जो गलती कर रहे थे whom के साथ में, वो ये था कि जो प्रपोजिशन यूज कर रहे थे वो हम एंड में यूज कर रहे थे, बस उसको स्टार्टिंग में यूज करना है। और जब मैंने हु, हुज एंड whom का सेशन लिया था तो मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया था। आई होप इट्स देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर कभी कभी हम लोग चीजें बार बार रिपीट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो दे आर बाउंड टू स्किप, वो निकल जाएंगे दिमाग से। सो आई थिंक इट्स देयर इज नॉट मच वरी टू need to worry, but yeah, still we have to practice, वो बहुत ज़रूरी है। सो वेल, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये whom का था, पहला एक यूज हो गया। whom किसी प्लेस के लिए, फिर किसी चीज का किसी चीज से ताल्लुकात रखना। एक और मतलब बता देता हूँ, whom को एक बहुत इंपॉर्टेंटली यूज करते हैं अगर आपको कभी किसी इंसान का, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ग्रुप से कनेक्शन भी बताना हो तो भी आप बिलोंग वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि आई बिलोंग टू, इसके बाद भी टू लगाना, वेयर डज आगरा बिलोंग टू, नो, हु डज, ओके, या यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। हेमंत सर पूछ तो सकते हैं, लेकिन अब एक्चुअली हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। सो आगरा बिलोंग्स टू, सिंपल है। या तो आपको ऐसा लग रहा होगा यूपी को बिलोंग करता है, एंड यूपी तो इंडिया को बिलोंग करता है। सो
हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अभी हम किसी राजा का नाम नहीं ले सकते। कोई राजा नहीं बोल सकता कि इट बिलॉन्ग्स टू मी। बोल सकते हैं, वो किसी महल के लिए बोल रहे हैं, अब आगरा के लिए नहीं बोल सकते कि आगरा बिलॉन्ग्स टू मी। सो आई गेस बोलने के लिए तो बोल सकते हैं लोग, बड़ी-बड़ी बातें हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो ऑफ कोर्स, सो आई बिलॉन्ग टू। और उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशंस के भी नाम लगा सकते हैं। जैसे जब मैं भोपाल में था, तो मैं अपनी पास्ट की बात है, बिकॉज़ नाउ आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, बट आई बिलॉन्ग, मैं सेकंड फॉर्म ज़रूर लगा दूँगा कि आई बिलॉन्ग टू BAC, ठीक है? एक ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड Bajaj Avenger Club, because I have got Bajaj Avenger bike. So जब भोपाल में मैं था तो आई बिलोंग्ड टू। सो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर था। तो आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ग्रुप के मेंबर भी होते हैं, तो भी आप बिलोंग वर्ड यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको यही बोलना पड़ेगी आई एम अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। आप बिलोंग वर्ड के थ्रू भी अपने आप को यू नो बता सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अभी भी मैं हूँ एक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कभी मौका मिले तो यू कैन जॉइन दैट ग्रुप। जैसे आई बिलॉन्ग अभी भी हूँ मैं, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ दैट आई बिलॉन्ग टू YHAI, and this is Youth Hostel Association, है ना? So Youth Hostel Association of India. So ये एक अच्छा है, इनके पूरे ऑल ओवर इंडिया में हॉस्टल्स है। मोर ओवर दे कंडक्ट ट्रैकिंग प्रोग्राम्स एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस, और इनका बहुत अच्छा सिस्टम रहता है। हाँ, थोड़ा सा टफ है, आपको लग्जरी वहाँ नहीं मिलेगी, बट वर्थ जॉइनिंग। सो कभी अगर आपको ऐसा लगे नियर बाय होटल प्लाश, अगर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे तो मैं सर का नंबर भी दे दूंगा, जिन जो स्पेशली भोपाल में रन करते हैं। सो यू कैन जॉइन दैट ग्रुप। ये लोकल ट्रैकिंग करवाते रहते हैं, सो यू कैन डू लॉट ऑफ लोकल ट्रैकिंग्स। व्हेन आई वाज इन भोपाल, I did almost, I think, not almost, more than 200 local tracking programs, and I have done more than 5, 6 national tracking programs with YHAI. So I belong to DSY. Okay, you belong. You belonged. Now you don't belong to Rohan sir. सो अगर अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे आई बिलोंग टू, जैसे बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं। मान लेते हैं आप, जैसे भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ अरेरा क्लब है, तो आप बता सकते हैं कि आई बिलोंग टू अरेरा क्लब। सो मैं पूछ सकता हूँ, डू यू बिलोंग टू एनी क्लब, फाइन, डू यू बिलोंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, है ना? या पूछ सकता हूँ क्वेश्चन में, अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन की यू नो to which organization do you belong, which organization do you belong to. So ये मैं इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। सो ये बिलोंग का तीसरा यूज हो गया, ठीक है? किसी प्लेस से रिलेटेड बताया हमने पहले, फिर हमने किसी चीज का, किसी इंसान के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्शन है, वो बताया, फिर किसी ग्रुप का मेंबर होने के बारे में बात की। नाउ अब बिलोंग का एक बहुत खास यूज है, जो शायद मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। इसमें बिलोंग के बाद हमेशा इन यूज होता है। प्लीज, नो सर, आई डोंट बिलोंग टू एनी क्लब और ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स फाइन। वेल, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि बिलोंग के साथ इन वर्ड यूज करते हैं। अब टू प्रपोजिशन यूज नहीं होगी, क्लियर? इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बिलोंग के बाद जब इन वर्ड यूज करते हैं, तो फिर बिलोंग का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज का ताल्लुकात किसी से। फिर ये होता है बिलोंग का मतलब कि कोई चीज जहां पे उसकी सही जगह है, जब वो वहां पे होनी चाहिए या वहां के लिए वो बनी है, तो फिर आप बिलोंग के साथ इन यूज करते हैं। अब आप टू यूज नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर घर में जो बर्तन है वो गंदे हैं, है ना, वो यूज्ड हो चुके हैं। गंदे मतलब नहीं, मैं डर्टी नहीं बोलूंगा, नाउ दे आर यूज्ड एक्चुअली। तो जो यूज्ड यूटेंसिल्स हैं, जिनमें आपने खाना खा लिया है,
वो कहाँ को बिलोंग करता है। अब आप बिलोंग टू यूज नहीं करेंगे, तो आप बताएंगे, अगर मैं एक सेंटेंस बताऊं कि जो यूज्ड है ना, तो यूज्ड यूटेंसिल्स, ठीक है, यूज्ड यूटेंसिल्स बिलोंग, याद रखना बिलोंग्स मत कर देना। बिलोंग्स क्यों नहीं हो सकता, यूटेंसिल्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्लूरल है ना हमारा जो सब्जेक्ट है, वो प्लूरल हो गया, तो यूज्ड यूटेंसिल्स। या फिर आप अगर उन्हें आप गंदा दिखाना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप डर्टी भी यूज कर सकते हैं। सो यूज्ड यूटेंसिल्स या डर्टी यूटेंसिल्स बिलोंग इन यूज करिएगा, और इसके बाद मैंने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दी है, ठीक है। तो आपको पता है कि कौन सी ऐसी राइट प्लेस है जहां पे वो होने चाहिए। वॉश्ड यूटेंसिल्स बिलोंग इन, ठीक है, वॉश्ड यूटेंसिल्स बिलोंग इन, उसके बाद उस प्लेस का नाम जहां वो होने चाहिए, किचन मत लगा दीजिएगा प्लीज। आप यही कहेंगे फिर तो मैं कहूंगा कॉमन सेंस वाली बात है, सारे ही बर्तन किचन में ही होने चाहिए। यूज बिलोंग इन सिंक। थैंक यू सो मच, वेरी फास्ट ऑफ यू दिव्यांशी मैम। बाकी लोगों को तो इतना सोचना पड़ रहा है, आई डोंट थिंक दैट कि इतना सोचना पड़ेगा। इट्स, इससे ज्यादा सिंपल मैं आपको क्या पास करने के लिए दूंगा, यू नो। यूज्ड यूटेंसिल्स या डर्टी यूटेंसिल्स बिलोंग इन द सिंक, द जरूर लगा दो, द सिंक, बिकॉज घर में एक ही सिंक होता है नॉर्मली, सो द सिंक। यूज्ड यूटेंसिल्स बिलोंग इन वॉश बेसिन, वॉश बेसिन में, रोहन सर मे बी आई आई डोंट नो कि वो वॉश बेसिन में यूज होने चाहिए या फिर वो सिंक में। The used utensils belong and used belong in the sink. Uh, okay, fine. Shoes belong in. मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आप बनाते जाना। Shoes belong in. Used utensils belong in the sink. I was confused. Sorry. You know, Rohan sir, many people get confused. Not get confused actually. Sometimes, you know, shoes belong in the रैक। रैक की स्पेलिंग चेक करनी है मुझसे, है ना। रैग भी एक मतलब होता है इंग्लिश में, बट उसका कुछ और मतलब हो जाता है, उसको चीथड़े कहते हैं। शूज बिलोंग इन शोरूम, जतिन सर, योर शूज बिलोंग इन शोरूम्स, शूज बिलोंग इन शू रैक, द शू रैक, सिमी मैम द जरूर लगा लो। Used to belong in the sink. Shoes belong in the shoe rack. शू, दिव्यांशी मैम शू में शूज हो जाएगा, एक शू ना, फिर हो जाएगा बिलोंग इन द शू स्टैंड। ओके, अच्छा, अगर आपके भाई के कपड़े या फिर जस्ट मैं टेकिंग एग्जांपल बिकॉज मुझे लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोग यंग हैं अभी, अनमैरिड होंगे, तो अगर आप और आपके घर में आपके सिबलिंग्स जो हैं, अगर उनके कपड़े आपकी कबर्ड में हों या आपके वार्डरोब में हों, तो आप उनके कपड़ों को उठाकर उसको क्या बोलेंगे अपने भाई या बहन को कि भैया योर क्लोथ्स, क्या होना चाहिए सिमी मैम। शूज बिलोंग इन द शू रैक, आई जस्ट सेड यस, यू राइट। Shoes belong in the shoe rack. Shoes belong in the shoe rack. Yeah. Shoes belong in the shoe rack. Yep. Shoes belong in the foot. Now, अच्छा, राइट प्लेस उनकी, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइट प्लेस टू कीप दैम, यू नो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Before that sentence, which sentence are you talking about? Dirty clothes. Okay, dirty clothes belong in laundry basket. Okay, sorry ma'am, I missed that, and I do agree with you. Dirty clothes, but uh, your clothes belong in your almirah. Yeah,
uh, again good, but I just want to say, आपको अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाओगे, है ना, कि आपके कपड़े मेरी कबर्ड में बिलोंग नहीं करते. फाइन. सो नेगेटिव सेंटेंस मैं चाह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छा सारा सेंटेंस बन जाएगा कि योर क्लोथ्स योर क्लोथ्स बिलोंग इन योर अलमीरा. ओके, कबर्ड यूज कर लीजिए. अच्छा, अलमीरा है, कबर्ड यूज कर सकते हैं आप, और वार्डरोब भी आप यूज कर सकते हैं. योर क्लोथ्स मैं यही चाह रहा था कि प्रैक्टिस करेंगे तो फिर समझ में आएगा. So your clothes doesn't belong in my almirah. Got it? Yes, got it. Your clothes doesn't belong in my almirah. Your clothes belong in your almirah. Your clothes doesn't belong to my cupboard. Your clothes doesn't belong in my almirah. That doesn't belong in my. छोटी सी गलती है सब के साथ. डोंट. चलो, थैंक यू सो मच हेमंत सर. इन्होंने बाद में देख के, शायद मैंने बाद में इन्होंने देखा क्लोथ्स के बारे में बात हो रही है. ठीक है, क्लोथ्स. और जब क्लोथ्स की बात करेंगे तो फिर डजंट क्यों यूज हो रहा है, डोंट यूज होना चाहिए. हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर नहीं है ना. सो यही हमारे डे स्टार्टिंग के बेसिक्स में हम लोगों ने इसी पे डिस्कस किया था और लगातार प्रैक्टिस भी की है. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, वो कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. तो जैसे चीज़ें नज़र से जाएंगी वो चली जाएंगी. दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस सेशन. सो आई विश कि हम सब लोग इसको, I'm very happy that you all guys have been very active in my this session. So बस अभी आप सब लोगों को यही है कि इसको सही करना है कि ये don't use कर लीजिए. So your t-shirt doesn't belong in my almirah. Is that right? Yeah, this is right because you're talking about now a particular a piece के बारे में. तो your t-shirt it's singular. ठीक है, तो आप ये बिल्कुल यूज कर सकते हैं. your cloth नहीं मैम, एस लगाओ. यस पूजा मैम, इसमें एस लगेगा तो योर क्लोथ्स डोंट बिलोंग्स, और डोंट लगा तो एस तो लग ही नहीं सकता. सो योर क्लोथ्स डोंट बिलोंग टू माई कबर्ड. योर क्लोथ्स डोंट बिलोंग इन, और टू नहीं लगाना यहाँ पे, इन वाला चल रहा है ना रूल, ये इंपॉर्टेंट रखेगा. चलिए, वैसे तो बाय द वे टाइम इज ओवर, बट बिकॉज मैं पिछली 2 सेशन नहीं ले पाया, तो 3 दिन का क्लास नहीं हो पाया. So just I want 10 more minutes. So I hope you people will be present in next 10 मिनट और के बाद फिर मैं टाटा बाय बाय करता हूँ. ओके, आई विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स. एक इंपॉर्टेंट रूल है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ. अगर कोई पर्सन किसी जगह पर खुश फील करता है, ठीक है, वो खुश है, वो कंफर्टेबल फील करता है, तो फिर वो उस पर्सन के लिए आप या आप खुद अपने लिए एक सेंटेंस आज से बोलना शुरू कर सकते हैं. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसको समझ लीजिएगा. पहले आई हमेशा आपको यही बोलना है. इसके बाद कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती है. ना यहाँ पे टू यूज करना है आपको, ठीक है, ना आपको यहाँ पे इन यूज करना है. आपको सिर्फ यहाँ पे हियर वर्ड यूज करना है. ठीक है, आई बिलोंग हियर या आई डोंट बिलोंग हियर, ये 2 तरीके याद. योर शूज डोंट बिलोंग इन माय शू रैक. इज दैट या इट्स राइट मैम. सो आई बिलोंग इन, सॉरी, आई बिलोंग हियर का यूज बताना चाह रहा हूँ आपको. जैसे लाइक आई एम इन भोपाल एंड मैं अपने कुछ लोगों से मिला जब, तो उन्होंने ये पूछा कि नाउ आज की बात, इवनिंग में आई वाज विद देम. सो दे सेड कि सर आप भोपाल छोड़ दिया, अब भोपाल आया तो कैसा लग रहा है. तो मैंने उनको ये बताया बिकॉज आई हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 14 ईयर्स. तो मैं वहाँ 14 साल से ज़्यादा रह चुका हूँ ना. अब इतना लंबा पीरियड में रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भोपाल में खुश हूँ, मैं भोपाल में कंफर्टेबल हूँ. सो आई बिलोंग हियर. ठीक है, आप प्लेस का नाम नहीं लगाएंगे, प्लीज इतना ध्यान रखिएगा. क्या बिलोंग इन भोपाल नहीं यूज करेंगे. ठीक है, प्लीज इसको समझिएगा. आई बिलोंग हियर.
फाइन। आप किसी मान लीजिए ग्रुप में हैं, फाइन, आपके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती, समटाइम्स इट हैपेंस, स्टूडेंट्स के साथ में बहुत होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको डांस क्लास जॉइन करवाते हैं, स्पेशली मैं बहुत यंग किड्स की बात कर रहा हूँ, और शायद हो सकता है बच्चे का उतना इंटरेस्ट ना हो डांस के अंदर, और उसको डांस अकेडमी में जॉइन करवा दिया, तो वो बच्चा जो है वो उस अकेडमी में जाके ये तो बोलेगा, आई डोंट बिलोंग हियर। सो आई डोंट बिलोंग हियर का ये मतलब है कि वो ये बताना चाह रहा है, ही, that kid is not happy and comfortable in that particular place. So अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊं तो हमेशा आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको वो सेंटेंस बनाना पड़ेगा जिसमें उस प्लेस के बारे में मेंशन होगा। जैसे माय फादर got me admitted in a dance academy, but I think I don't belong here। समझ रहे हो? सो पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें मैंने डांस एकेडमी को मेंशन किया है। जैसे मैं अगर पहले बोल रहा हूँ कि आई हैव लिव्ड इन भोपाल फॉर मोर देन 14 years, सो आई बिलोंग हियर। सो आई बिलोंग हियर मतलब आई एम हैप्पी एंड कंफर्टेबल इन भोपाल, फाइन। सो आई डोंट बिलोंग हियर, so your clothes don't belong in my cupboard, yeah, this is good। तो ये वाला जो तरीका है ना, इसको बहुत मैं कहूँगा कि ये बहुत बहुत अच्छी इंग्लिश का एक पार्ट है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। इट्स नॉट एज बेसिक एज इट सीम्स। ये किसी भी उस व्यक्ति के मुंह से आप ना सुन पाएंगे जो लोग एक्चुअली एक अच्छे लेवल पे इंग्लिश नहीं जानते हैं। और अगर आप ये दिखाना चाहते हैं दैट योर इंग्लिश इज बेसिक से बेहतर है, सो मैं ये वैसे मैं आपसे ये कहूँगा कि किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन। हमसे कोई बेहतर, मैं जैसे मैं कभी नहीं मानता कि मुझसे कोई बेहतर होगा, या ना मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझसे मैं किसी से बेहतर हूँ। आई एम गुड एक्चुअली, दैट्स इट। मैं ये फील करना चाहता हूँ, एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस कि आप जो है आपको अपनी फीलिंग्स के साथ रहना चाहिए। बेटर होने से देन द रेस स्टार्ट्स एक्चुअली। सो आई वर्क माई ऑफिस फॉर, आई वर्कड हो जाएगा फिर सिमी मैम, है ना। सो आई वर्कड my office for I worked in my office for 8 years, but I don't belong here। ठीक है, so I belong there, okay। सो बिल्कुल बोल सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी एंड कंफर्टेबल इन दैट। सो इन दैट सेंस यू गॉट टू यूज दिस, विच ऑफिस बिलोंग्स मी मैम। ओके रंजना मैम, अभी हम लोग सेंटेंसेस की अच्छा, यू आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग, दैट्स वेरी नाइस। एंड आई वर्कड विद पीईबी फॉर आई वर्कड विद पीईबी फॉर। अब यहाँ पे जतिन सर मैं आपसे ये कहूँगा, और सिमी मैम आपसे भी, कि जब आप एक टाइम पीरियड बताते हैं कि किसी कंपनी के लिए आपने इतने समय के लिए काम किया है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की ग्रामर यूज होगी। तो आप इसमें हैव जरूर लगाना कि आई हैव वर्कड। ठीक है, सो जतिन सर आपको भी आई हैव वाली ग्रामर यूज करनी पड़ेगी कि आई हैव वर्कड विद पीईबी फॉर 1 month, क्लियर। और उसके बाद आप ये बता सकते हो कि आई बिलोंग हियर या आई डोंट बिलोंग हियर, जरूरी नहीं है ना। सो समटाइम्स मेंशन दैट, तो ये रह सकते हैं आप। और कुछ भी बता सकते हैं कि यू नो दैट आई हैव बीन लिविंग इन भोपाल फॉर, ये हैव बीन लिविंग क्यों बता रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज इसको समझिएगा, क्योंकि मैं भोपाल में अब नहीं रहता। आप में से जो लोग भोपाल में रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, आपके ये इंग्लिश है अभी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली ग्रामर चलेगी कि आई हैव बीन लिविंग इन भोपाल फॉर मान लेते हैं 10 साल। सो आई बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 10 years, बट आई डोंट बिलोंग हियर। सो 10 साल हो गए रहते हुए, फिर भी आई डोंट बिलोंग हियर, यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन भोपाल। सो आप ये सेंस के साथ यूज कर सकते हैं। वट अबाउट अदर गाइज, आप सब में से सब लोग, most of you happened. So now I stop and I wish you would participate.
Waiting for your practice for next 2 minutes, 1 minute. So I'll see some sentences of yours. It's possible. So I've been living in Jaipur from my birth, but I don't belong here. Okay. But I don't think so, because the people who've been living, since birth, they love that place. When I leave Bhopal, I don't belong here. When I leave Bhopal, एक तो लिव वर्ड आएगा, लीव वर्ड नहीं आएगा. रंजना मैम, स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना है. और जो दूसरा है, वेन के साथ नहीं आएगा. कि व्हेन आई लिव इन भोपाल, आप ये कहना चाहते हो शायद कि आप जब भोपाल में रहते हो तो यू आर नॉट हैप्पी, यू वांट टू से दैट. सो व्हेन आई लिव इन भोपाल, आई डोंट बिलोंग हियर. और हर हियर, आई बीन लिविंग इन भोपाल सिंस माय बर्थ, and I belong here. I belong here. Okay. My phone doesn't belong to you. My phone doesn't belong to you. ये तो बहुत पुरानी बात हो गई अब. मोहित सर, ये तो बहुत स्टार्टिंग वाला सेंटेंस बना लिया हमने अभी. आई बिलोंग इन भोपाल फ्रॉम माय चाइल्डहुड एंड आई बिलोंग हियर. सिंस यूज करो ना, फ्रॉम भी गलत नहीं है दिव्यांशी मैम, बट ट्राई टू यूज सिंस की प्रैक्टिस करने की. आई लिव्ड I've lived in Maharashtra for 2 years. In आएगा महाराष्ट्र से पहले. So I lived in Maharashtra for 2 years. But उसके आगे I've lived in Delhi for 4 months, but I don't belong. क्या बोलोगे? I didn't. पास्ट में हो गया तो हेमंत सर, पास्ट में जब जाएंगे तो क्या रहेगा? बिकॉज you still living in Delhi. I've been living in Bhopal since my birth, so I belong here. Okay, it happens. I've been living in Bhopal since my birth, so I belong here. Yep. Yeah. Anyways, guys, time to say goodbye for today. It was nice being with you, and just want to say good night. Have a sweet dream and sleep well. Hope to see you tomorrow. Cannot promise, because I'm not like yesterday. I got a client, and so cannot say that when I'm like going to be like for like next 10, maybe I think 10 days. My schedule may, nothing is decided. So I would say that everything is up in the air. But I'll try my level best to be live every day. I just want to be live because I enjoy that session. Thank you. So, good night to all of you. Yeah, everyone saying. And well, just let me know when you all people are free. So, I just want to meet also. So, I want to my tea is due. So many people have been there. So yeah, so I owe you a tea. So I just hope we all people will get together. Hope I will also decide a day. So I'm gonna wait for your session. Thank you. Most welcome, Sunil. So after that, we'll decide a place, and we'll meet over there. Thank you so much for today's session. Now, just want to say final goodbye, and I'm gonna end this stream now. So